اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، آج ہی صبح میں جلگاؤں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو گیا۔ گزشتہ کل گجرات کا ایک مشہور شہر ہے انکلیشور، اور انکلیشور سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پر ایک بہت اچھا گاؤں ہے دیوا، جہاں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ملک کے بڑے عالم دین رہتے ہیں۔ دیوا، گزشتہ کل دیوا گاؤں میں ایک شاندار پروگرام اسلم پیر بھائی اور ان کی پوری ان کی جو جماعت ہے، ان لوگوں نے ایک شاندار پروگرام گزشتہ کل سجایا تھا۔ یہ پروگرام بہت ہی شاندار رہا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا، انکلیشور سے مولانا قطب اللہ صاحب ندوی، مفتی ادریس صاحب، ایسے ہی بروڈا سے حافظ اویس سے امتیاز بھائی، ارشاد بھائی، اور بہت ہی زبردست یہ پروگرام تھا۔ مرکز اسلامی انکلیشور کے جناب قاری محمد وسیع اختر صاحب اور وہاں کے دیوا جامع مسجد کے اور تمام ائمہ بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور آس پاس کے گاؤں سے لوگ آئے تھے۔ بڑا شاندار پروگرام رہا۔ فلسطین کے لیے اجتماعی دعا بھی ہوئی، اور ملک کے حالات پر اور عالمی حالات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس دوران میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ دیوا گاؤں میں کچھ دنوں پہلے سیلاب آ گیا تھا، ڈیم کا پانی ایک ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے، اور وہ بھی پوری کہانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نریندر مودی کا برتھ ڈے دیوا والوں کے لیے مہنگا پڑ گیا تھا، یعنی ان کے برتھ ڈے کی خوشی اور دیوا والوں کا غم تھا۔ پورا گاؤں یوں سمجھیے کہ ڈوب گیا تھا۔ لیکن ایسے موقع پر وہاں دیوا میں جو ویلفیئر کمیٹی ہے، ویلفیئر کمیٹی اور آس پاس کے تمام جوانوں نے، گاؤں کے لوگوں نے بڑی خدمت کی تھی، بڑی محنت کی تھی۔ ہم انہیں دل سے دعائیں، دل سے سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرے۔ اور جن لوگوں نے گزشتہ کل کا پروگرام سجایا تھا، یہ پروگرام بھی بڑا کامیاب رہا۔ واٹس ایپ پر بھی آ جائے گا اور یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ گزشتہ کل دیوا کا بیان آپ ضرور سنیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلی اور بڑی افسوسناک خبر پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں رہنے والے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، جو عالم اسلام کے بڑے مشہور عالم دین، مبلغ اور داعی ہیں، کروڑوں دلوں پر جو راج کرتے ہیں، اور ہم خود حضرت مولانا کی تقاریر سن کر بہت کچھ سیکھتے ہیں اور انہی کی تقاریر سے بہت کچھ مواد حاصل کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک بالکل الگ صلاحیت دی ہے، جو ہم تمام لوگوں کے لیے موٹیویشن کا کام کرتی ہے، ترغیب کا کام کرتی ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ خبر سنا رہا ہوں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بیٹے عاصم جمیل کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके इंतकाल की खबरों को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही है, तमाम खबरों में बड़े अजीब व गरीब अंदाज में सोशल मीडिया पर भी खबरें गर्दिश कर रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें बिल्कुल गलत है। मौलाना तारिक जमील साहब के फर्जंद मरहूम आसिम जमील के इंतकाल के बाद, क्योंकि उनका जो इंतकाल हुआ है वो अपने आप को शूट करने की वजह से हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा उनके भाई मौलाना यूसुफ जमील ने मीडिया के सामने आकर एक सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी एक वीडियो वायरल करके इस बात की वजाहत की है कि लोग मुख्तलिफ अंदाज में अफवाहें और ख़बरें सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि किसी की दुश्मनी थी, किसी ने मारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना यूसुफ जमील साहब ने साफ तौर से वजाहत करते हुए बयान किया है कि वो एक ख़तरनाक बीमारी के शिकार थे, डिप्रेशन की बीमारी के शिकार थे, और इत्तेफाकन वो गुज़िश्ता कल अकेले अपने घर में मौजूद थे, और उन्होंने बाहर तयनात जो मुहाफ़िज़ था, बॉडीगार्ड था, उसकी पिस्तौल ली और उसी से अपने आप को ख़त्म कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिर बात है कि ये बड़ा गहरा सदमा है हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहल खाना और उनके मुतल्लिक़ीन के लिए। हम सब दुआएँ करते कि अल्लाह ताला उस बच्चे की भी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को, उनके तमाम अहल खाना को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। मीडिया पर चलाई जा रही है, उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे, और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे। बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर जो रोज़ाना की सबसे बड़ी खबरें आ रही है, उसमें गज़ा, फ़लस्तीन, इज़राइल और हमास की जंग को लेकर खबरें सामने आ रही है। खैर, इस वक्त में मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों यानी इज़राइली, सहयूनी, यहूदी और अमरीकी आतंकवादियों के ज़रिए गज़ा पर जो बमबारी की गई है, खबरें आ रही है कि इससे गज़ा में ज़मीन हिल गई और सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोस हो गई है। गज़ा की जंग अब नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने हंगामी तौर पर अरब सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इजराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी में जो बमबारी की गई है उससे पूरी गज़ा की ज़मीन हिल गई है। और वहीं पर मैं आपको बताऊं कि गज़ा की पट्टी में इजराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई को वुसअत देने के बाद रात के वक्त टैंक और पैदल फौज भी भेजी गई है। इजराइल ने गज़ा पर हवा, समंदर और ज़मीन के रास्ते से भी हमले शुरू कर दिए हैं। और वज़ीर आज़म इजराइल यानी बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, उसका बड़ा बयान आया है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा की पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। गज़ा पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जंग का दूसरा मरहला है। दुश्मन शहरियों को जंग में ईंधन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाने वाले मुनाफिक है। इजरायली वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दिल टूट गया जब हमास यरगमालियों को कैद करके ले गए। यरगमालियों को रिहा करवाने के लिए सब कुछ करेंगे। जंग के बाद हमें मुश्किल सवालात का जवाब भी देना होगा। वहीं पर याहू ने कहा कि ज़मीनी कार्रवाइयाँ यरगमालियों को वापस लाने में हमारी मदद कर सकती है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए, तीसरी बड़ी खबर भी गज़ा के हालात को लेकर ही आ रही है, क्योंकि अभी तो फिलहाल गज़ा और फ़लस्तीन के हालात ही सामने आ रहे हैं। खबर आ रही है कि गज़ा के शिमाल में ज़बरदस्त अंदाज में
जंग जारी है। वहीं पर मुजाहमती तंजीमें यानी हमास और मुजाहिदीन की तंजीमें भी ज़बरदस्त अंदाज में घात लगाकर इजरायली अमरीकी आतंकवादियों का मुकाबला कर रही है। और खबरें आ रही है कि इस जंग में कई टैंक को तबाह करने का दावा मुजाहिदीन ने किया है कि हमने कई टैंक इजराइल के तबाह कर दिए हैं। इजरायली हमलों में 8000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई है। वहीं पर गज़ा में ब्लैक आउट के बाद जुज़वी तौर पर मवासिलात और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि फैसला कुन जंग होगी और इसमें हम इजराइल को शिकस्त देंगे, ऐसे हमास का तर्जुमान अबू उबैदा का बड़ा बयान आया है। वहीं पर इजराइल ने जंग के दूसरे मरहले यानी ज़मीनी जंग का ऐलान भी कर दिया है। मारका तूफान अक्सा के गुज़िश्ता कल 23 दिन मुकम्मल हो गए हैं। जी हाँ, अकमार के तूफान अक्सा के 23 दिन भी इजराइल का गज़ा पर फ़ज़ाई और बर्री हमला जारी रहा। लोग फ़लस्तीन के उन मज़लूमीन के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और उनकी हिम्मत को दाद भी दे रहे हैं कि वाक़अतन किस तरीके से ये मज़लूम, ये बेसहारा, ये निहत्ते जिनके पास में न रॉकेट है, न बम, बड़े बड़े बम हैं, न जिनके पास फ़ौजें हैं, बड़ी हिम्मत और बड़ी जुर्रत के साथ ये तमाम लोग बाकायदा इजरायली आतंकवादियों, अमरीकी आतंकवादी फौज का मुकाबला कर रहे हैं। फलस्तीनियों की हिम्मत और जुर्रत को लोग पूरी दुनिया में सलाम कर रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर आ रही है, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से खबर आ रही है कि बांग्लादेश की मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालबा वहां की आवाम कर रही है। गुज़िश्ता कल की खबरें आ रही है कि लाखों अफराद, 1 2 3 हजार नहीं, लाखों अफराद ने गुज़िश्ता कल शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालबा किया और जोरदार अंदाज में बांग्लादेश की सड़कों पर एहतजाज किया। तशद्दुद भड़क गया। इस तशद्दुद में 100 से ज्यादा मुजाहिरीन और आंदोलनकारियों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। बांग्लादेश में शनिचर के दिन अपोजिशन की रैली के दरमियान तशद्दुद फैल गया। इसके बाद अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के कारकुनों की पुलिस से झड़प हुई, जिसमें एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया है। इस तशद्दुद में तकरीबन 100 मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। दरअसल बांग्लादेश में अगले साल जनवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में अपोजिशन पार्टी ये डिमांड कर रही है कि वजीर आजम शेख हसीना इस्तीफा दे दें और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए निगरां हुकूमत बनाई जाए। बांग्लादेश में तशद्दुद के दौरान कई गाड़ियों और पिकअप वैन्स में आग लग गई। बांग्लादेश में तशद्दुद के दौरान कई गाड़ियों और पिकअप वैन में आग लगी और बांग्लादेशी मीडिया डेली स्टार के मुताबिक गुज़िश्ता 45 माह में यह सबसे बड़ा एहतजाज, सबसे बड़ा मुजाहिरा था। हफ्ते को अपोजिशन जमातों के मुजाहिरे के दौरान काफी हंगामा आराई हुई है। इस दौरान मुल्क के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के घर पर भी हमला किया गया। आखिरी बड़ी खबर भी जो है वो गजा, हमास और फलस्तीन के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, खबरें आ रही है कि अमरीकी महकमा खजाना ने खलीजी रियासतों से ये कहा है कि हमास की फंडिंग खत्म करने में हमारी मदद करें। दहशतगर्दों की फंडिंग की बेखुनी से मुताल्लिक अमरीकी इदारे TFTC ने इस हफ्ते एक हंगामी इजलास में मशरिक़ वुस्ता में अपने इत्तेहादियों पर यह जोर दिया कि वो 7 अक्टूबर को इजरायली शहरियों पर एक बड़ा हमला करने वाले ग्रुप हमास की बैरूनी फंडिंग मुनक़ता करने की कोशिशों में इजाफा करे। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने TFT के रुकन मुल्क पर जोर दिया कि वह हमास की फंडिंग का सिलसिला खत्म करे और मजीद इक़दाम करने के लिए अपनी असरो रसूख का इस्तेमाल करें। वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के सबसे बड़े आतंकी वजीर आजम यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अपना एक ट्वीट किया था, मुतनाज़े विवादित ट्वीट किया था, जब चारों तरफ से लोग उन पर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर थूकने लगे तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने
اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں غلط تھا, جو باتیں میں نے کہی وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ بنجامن نیتنیاہو نے جو اپنا ٹویٹ کیا تھا 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کی ناکامی پر, نیتنیاہو نے سیکورٹی اور انٹیلیجنس سروسز کو مورد الزام ٹھہرایا تھا. اب نیتنیاہو کا کہنا تھا کہ میں معذرت خواہ ہوں اور سیکورٹی اداروں کے تمام سربراہان کی مکمل حمایت کرتا ہوں.